Good morning friends. Today we are again come with a new video. In this video we are going to learn about language study. We had earlier seen one part of language study where we had seen two questions based on this language study. Which are that question that also we are going to revive today. But today we are going to see again two more questions. One step by step we are going to complete this activity, because if we complete in one stroke, if we complete this activity in one stroke, then it is very difficult for you to understand all the activities. So I am taking step by step this activity so you can understand and you can solve. You will get ample time to solve this type of activity and you will get ample opportunity to learn and understand this activity. सो आज अपन दोस्तों लैंग्वेज स्टडी का सेकंड पार्ट देखेंगे, इसे हम सेकंड पार्ट नाम देंगे। ठीक है, इसे हम सेकंड पार्ट नाम देंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कंप्लीट द वर्ड्स करेक्ट वर्ड, ओके, वो देखा था। दूसरे इसमें हमने देखा था कंप्लीट द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमने देखा था। आज हम देखेंगे पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड मीनिंगफुल वर्ड्स। ठीक है, 6 क्वेश्चंस आते हैं मैंने कहा था आपको, तो उसमें से तीसरा और चौथा आज देखेंगे। ठीक है, आपको 6 में से 4 ही छुड़ाना है। जो भी आपको आसान लगता है इन 6 में से उसको आपको छुड़ाना है, लेकिन हमें देखना सब भी पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये आपका डिसीजन है, आपको कौन सा अच्छा लगे। इट इज़ अपॉन यू विच you are feel easy to solve. You have to make practice of every question, but in the exam you have to solve only 4 out of 6 on in the question first A, do as directed. So let's start the video. The third question will be punctuate the following. Okay, you have to punctuate the sentence in a appropriate manner. म्हणजे आपको पंक्चुएशन मार्क विराम चिन्ह लगाकर वाक्य को सही करना है। आपको योग्य स्थान पर विराम चिन्हों का उपयोग करना है दोस्तों। आपको एक सेंटेंस इस प्रकार से दिया रहेगा, आपको उसे इस प्रकार से करना है। दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग ऑल द सेंटेंस इन अप्रोप्रिएट what we can call in appropriate punctuation mark. So what you have to do, suppose in the exam they will given you such type of question. She smiled a beggar changed my life. You have to understand this question and you have to write in the way here they had written she smiled, comma, in a single inverted comma you have to write, you have to put the a letter capital and a beggar change my life. In this way you have to do this activity, means you have to write appropriate punctuation mark. You have to give write appropriate punctuation mark wherever it is necessary. ओके, wherever it is necessary you have to put, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर आपको पंक्चुएशन मार्क लगाना है दोस्तों। ठीक है, तो ये पंक्चुएशन मार्क लगाने के लिए, और वाट एवर द क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम, वाट एवर द सेंटेंस आर गोइंग टू कम इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑल विल बी फ्रॉम योर इंग्लिश 10th टेक्स्ट बुक। ओके, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में से आएंगे, बाहर के इसमें आएंगे नहीं। आप जो लेसन पढ़ रहे हो, आपको लगता है इस लेसन में पंक्चुएशन मार्क्स के ज़्यादा उपयोग किया है, तो उस लेसन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है मित्रों, क्योंकि उसमें जो वाक्य दिए होंगे उसी में से कोई वाक्य आपको आएगा और उसका आपको पंक्चुएशन मार्क करना है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत से बच्चों को डिफ़िकल्ट जाएगा, क्योंकि जिसको ज़्यादा पढ़ता है, इफ़ suppose some student read more textbook and he knows more about the punctuation mark, because before writing this solving this type of question you know all the punctuation mark, what type of punctuation marks are there, full stop, apostrophe, comma. You have to know all the definition of all the punctuation mark. We had already learned that, and but then also if you are confirm, if you know, if you are convinced in yourself that you can solve, then only you have to solve this question. मतलब आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैं छुड़ा सकता हूँ तभी छुड़ाओ, अदरवाइज यू कैन अवॉइड दिस क्वेश्चन, यू कैन अवॉइड दिस क्वेश्चन। आप इसको टाल भी सकते हो, क्योंकि हमें क्या करना है, 6 में से 4 छुड़ाना है, तो आप इसे टाल कर दूसरे 3 में से 2 छुड़ा सकते हो। ठीक है, हमको 8 मार्क लेने से मतलब है। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा दोस्तों, हम देखते हैं।
जैसे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग आस्क द इंटरव्यू। आपको पता है ये दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अनबीटेबल सुपर मॉम मेरी कॉम। मेरी कॉम में इसका लेसन में से ये क्वेश्चन दिया है। तो आप जब वो लेसन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको वो सेंटेंस इस प्रकार से और टेक्स्ट बुक में दिया होगा, तो आपको इस प्रकार से पंचुएशन मार्क, जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग, दिस question is asked by the interviewer. So this you should able to understand and you can able to arrange this in correct punctuation mark, then only you will get 2 out of 2 mark. So if you feel you are comfortable in solving this kind of question, then you attempt this kind of question, and I personally believe that you should solve all the 6 questions. Suppose in some question you made some mistake in the exam, देन अगर आपने किसी क्वेश्चन में गलती भी कर ली तो आपको दूसरे क्वेश्चन का बेनिफिट मिल सकता है, आपको आपके मार्क कटेंगे। 6 में से 6 भी छुड़ाओ, अगर आपके पास समय है, उनको देना तो 8 ही मार्क है, ठीक है। तो जिसमें आपको पूरे मार्क है वो मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप देखो, अगर आपको ये लगता है तो इसको छुड़ाओ, इसकी प्रैक्टिस करो। इसके बाद का जो क्वेश्चन है मित्रों वो हमें देखना है। तो क्वेश्चन है, here also given one more example friends. He asked the bird, what are you doing? This is also one question, what are you doing? So you know what, where we should put capital letter, where you have to put comma, where you have to put question mark. This you should able to understand. So the first alphabet should be capital. He asked the bird, this is a question, then you have to put the comma, then in the inverted comma, what are you doing, this is a question, then you have to follow the question mark and give the punctuation mark. In this way you have to do this activity. Second, how easy it will be, how easy it will be, it is an exclamation mark type of question, so you have to do exclamation mark here. So this is a question you have to solve. Next question I am going to give you, the fourth question is make words of minimum 3 letters using द वर्ड इन्वायरमेंट। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड दिया रहेगा तो आपको मिनिमम 3 लेटर के वर्ड्स बनाना है। कितने लेटर के? 3। जैसे आप ओ आर नहीं बना सकते या नो नहीं बना सकते, क्योंकि वो 3 लेटर नहीं है, 2 लेटर के वर्ड्स है। आपको कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा लेटर के वर्ड बनाना है। कितने? कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा, आप उससे कम नहीं बना सकते हो दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये महत्व कि यूजिंग द लेटर इन द वे, तो 4 लेटर आपको कम से कम बनाना है। कितने? 4 वर्ड्स, और वो आपको 2 मार्क ले। आप क्या करो, 2-4 बनाना है, लेकिन आपको अगर आपको ज़्यादा आते हैं तो आप 6 बना लो। हो सकता है एक आधा अपना गलत हो गया तो उसका बेनिफिट आपको दूसरे वर्ड्स में मिल जाए। तो आप ज़्यादा बनाओ, कम मत बनाओ दोस्तों, ठीक है। तो हम वर्ड देखते हैं। तो यहाँ पर वर्ड उन्होंने दिया है एनवायरनमेंट, दे हैड गिवन वन वर्ड एनवायरनमेंट। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड। आप दोनों तरफ से बना सकते हो, आप बीच में से भी वर्ड्स ले सकते हो, सीधे में से भी ले सकते हो, आड़े में से भी, एज पर योर चॉइस। यू कैन टेक वर्ड्स फ्रॉम द बिटवीन, from the start of the word, last alphabet, you can take any alphabet, but you have to take from the word only. आप किसी में से भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, लेकिन वो अल्फ़ाबेट इसमें होना चाहिए वर्ड में। तो अभी हमने देखेंगे, जैसे इन्होंने बताया है, बनाए हैं यमी एन मेन बनाया, फिर यहाँ पर टी यहाँ से लिया, TEN की लिखा है ना, TEN 10 बनाया, ONE1, ON यहाँ पर है, E यहाँ से उठाया, ONE1 बना दिया, फिर TENT टेंट बना दिया, ठीक है, टेंट बनाया, NINE 9 बनाया, ETC एक्सेट्रा बनाया। तो इन दिस वे यू कैन मेक वर्ड, एक्सेट्रा नहीं बनाया, ये गलत है। तो ये 5 वर्ड उन्होंने बनाया। यू कैन मेक मोर वर्ड, ट्राई टू फाइंड आउट वन मोर वर्ड, यू इफ़ यू आर एबल टू, वी विल फाइंड आउट। So friend, we can make more words from this given words. Like I had also make 2 words, NET net, net यानी जाल है क्या, NET net बनाया मैंने। फिर MET मेट यानी मिलना। तो in this way you can make so many words through this type of activity. So here in today's session we had learned 2 more question of language study. First question,
Do you understand this question? One more example I am going to give you so that you can easily understand this. आपको समझ में आएगा फिर से, ठीक है. So here they had given one word, suppose unbeatable. If I had written unbeatable, okay, this is one word, unbeatable. Okay, this is one word. Suppose you have to make 4 words. So how you can make beat, beat. Okay, beat मतलब किसी को हराना, beat, beat, bet, bet, bet भी होता है ना. able, एबल, कभी कभी आपको सीधे में भी बन जाते हैं, able, एबल. ओके, एंड table, टेबल भी होता है, आप इसको भी बना सकते हो, table, टेबल. ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन मेक वर्ड्स. लाइक यहाँ पर उन्होंने बनाकर बताया होंगे आपको, आप देखेंगे तो बीट, बीट, able, एबल, table, टेबल, eat, ईट, unable, अनेबल, bat, बैट. तो इस प्रकार से आप जितने चाहो वर्ड्स बना सकते हो दोस्तों. तो दिस बोथ एक्सरसाइज आर easy. You can find here in the last session we had see the we are refreshing this. Okay, this is a language study, it is for 10 mark. Attempt any 4 question. Again I am telling you, attempt any 4 question. 4 क्वेश्चन छुड़ाना है, जिसमें कोई भी 4 छुड़ाओ, 6 दिए रहेंगे, 4 छुड़ाना है. ये हमने उस दिन के आंसर शीट में देखा था. तो दैट डे वी हैड कंप्लीट दिस, कंप्लीट द वर्ड बाय यूजिंग करेक्ट लेटर. जैसे FIRY, फेरी, अर्थ, ब्राइड, ये हमने देखा था. इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो. डू मोर प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन, यू कैन इजीली स्कोर 2 मार्क्स हियर. देन सेकंड, पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. हियर they had given one word is from different alphabet, second are from the same alphabet. Here you can make this is also activity we had seen in the last period. Here also you can score. ये 2 क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करना है, ये बहुत इजी है और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो. थर्ड इज पंक्चुएट द फॉलोइंग. Punctuate the following is somewhat difficult. If you want, you can avoid also. If you comfortable in solving this kind of question, you can solve this kind of question also. Okay, if you are comfortable, then only try to solve, otherwise you can avoid also. Fourth is very easy. Fourth is make 4 words of minimum 3. इसमें एक सिर्फ ध्यान देना है, 4 वर्ड बनाना है और कम से कम 3 लेटर होना, कम से कम 3 से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों. ये देखना है यूजिंग द लेटर्स इन ऑफ गिवन वर्ड. तो ये वर्ड दिया रहेगा, यू कैन मेक लेटर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ड. यू कैन टेक अल्फ़ाबेट फ्रॉम एनीवेयर, कहाँ से भी आप ले सकते हो. आप यहाँ से उठा सकते हो, यहाँ से उठा सकते हो, लेकिन वो वर्ड मीनिंगफुल. यू हैव टू मेक मीनिंगफुल वर्ड in English. Means whatever word you are making, that should be the word of English and it should be have some meaning. Okay, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए. तो आपको ये समझ आ गया. ये 2 क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन हमने देखे आज लैंग्वेज स्टडी में से, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन के मैंने इसके पहले ही एग्जांपल दिए थे छुड़ाने के लिए. इसके आज मैं दूंगा, आपको उसकी भी प्रैक्टिस करना है. 4 में से 3 आप आराम से छुड़ा सकते हो. पहला, दूसरा, तीसरा अगर हमने छोड़ दिया तो चौथा है कि नहीं. कितना इजी है, आप आराम से छुड़ा सकते हो. मैं इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए देता हूँ वर्ड. सो वी हैड कंप्लीटेड 4 क्वेश्चन. सो आई एम गिविंग द होमवर्क फॉर 4 क्वेश्चन ऑन. ओके, ऑल द 4 क्वेश्चन यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द 4 क्वेश्चन. डू एज डायरेक्टेड, अटेम्प्ट एनी 4, कंप्लीट द वर्ड बाय यूजिंग करेक्ट लेटर. ये छुड़ाना है आपको, ठीक है. इसके बाद आपको क्या छुड़ाना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर छुड़ाना है आपको. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी मैंने आपको पढ़ाया है. इसके बाद पंक्चुएट द फॉलोइंग ट्राई करना है, छुड़ा कर देखना है. मेक द वर्ड्स ऑफ मिनिमम 3 लेटर. ये जो है हमने बताया, ये वर्ड के 3, कम से कम 3 लेटर के वर्ड बनाना है. तो इनकाउंटर में से आपको जो भी बनते हैं बनाओ. और मैं देता हूँ आपको ये पहला, इसको पॉज करके ये क्वेश्चंस लिख लो, इसके आंसर छुड़ाओ. फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ. देन अगेन दिस क्वेश्चन, here also same questions are there. Here also complete the following words, then alphabetical order, punctuate the following sentence and make 4 words of minimum 3 letters. The words are granddaughter. The word is granddaughter. You have to make as many words as you can here. Try to do the practice of alphabetical order and complete the word. ये 3 क्वेश्चन आपको इजी है दोस्तों. कम से कम ये 3 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करो, so that you can score 6 mark easily. The next 2 question we are going to see in the next video, that is in the last video of language study. Okay, so try to do the practice and
share your responses on our WhatsApp group. Hope everybody had understand. If you feel any type of difficulty, don't hesitate to ask me. I am always there to help you. Okay friends, bye.